So, let we start today most economical channel section continue. In previous lectures we have discussed about the open channel flow, difference between open channel flow and pipe flow, and some geometrical properties which we used in open channel flow, we have discussed about that. Okay. And in this lecture we have discussed most economical channel section. Before we start the most economical channel section, here we derive the Cheji formula, okay, because there are the two important formulas, Cheji formula and Manning's formula. Without these the topic is not completed. So, we start first of all derive the Cheji equations, Cheji formula, by which we also derive the Manning's equations, and then in this lecture we have some relations between the Cheji's constant and the Manning constant. Okay. So, first of all introduce to myself. Hello, myself Indresh Kumar Singh, faculty of Civil Engineering Department, BVD and IIT Lucknow. Okay. Okay, start. So, it is the hydraulic engineering machines KCE 403, lecture number 5. Okay. So, we start the most economical channel section. Most economical channel section we have discussed about the rectangular channel section, okay, for the rectangular, triangular and trapezoidals. Now, we discuss in this class circular channel section, okay, circular channel section. So, we start the circular channel section. Before this we derive the some relations, okay, and that relations are very important for the discharge through the open channel flow. Means in open channel flow, if there is the open channel flow and the velocity v flow in this direction, we want to calculate the velocity v either discharge. What is the discharge? Q, okay, discharge volume per unit time in any cross section. So, if we want to find out the total discharge Q by the using some relations in open channel flow. Okay. So, for the discharge there are given many relations and formulas. From that we have discussed some formulas that are very important for the open channel flow and in according to your syllabus. So, in this first of all Cheji's, second is Manning's, Weijin's formula and Cutter's formula. From these Cheji's and Manning's formulas are very important for your syllabus, okay. And we have also discussed the Weijin's formula and Cutter's formula, okay. So, we start the Cheji's equation, here given as C, it is the Cheji's constant, okay. So, Cheji's equation, okay. So, first of all we start the Cheji equation, we derive the Cheji equation for the open channel flow, okay. Discharge through the open channel flow by the Cheji's formula. We know the, what is the open channel flow? Here a bottom of the channel, and if we consider this is the flow of the water in this direction, okay. And we know for the bottom of the channel there is the slope of the bottom SB और S नॉट से डिनोट कर सकते हो, ओके. सो इन दिस चैनल वी नो द फ्लो इन दैट डायरेक्शन, ओके. एंड इफ वी कंसीडर हेयर अ वर्टिकल लाइन देन दिस इज द थीटा डिग्री एंगल्स, ओके, स्लोप. सो वी टेक द कंपोनेंट्स ऑफ weight always acting in the downward direction due to the gravity. That means if we consider at a point the total weight is in downward direction, and now we break down the components of weight, okay. जो वाटर यहाँ पे फ्लो कर रहा है उसको अगर हम बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस वाटर का टोटल जो वेट का होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ड्यू टू द ग्रेविटी जो हम जानते हैं. तो अगर कोई भी हमारा चैनल स्लोप है, उसमें मैंने देखा कि चैनल जो लिए ओपन चैनल उसमें स्लोप आपका दिया गया है, तो अगर इसके कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे वेट के, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल के साथ रहेगा, आई कंसीडर हेयर W cos थीटा, ओके, and in the direction of flow W sin theta,
Okay, if we consider this angle is I, theta either I, okay, then these component become the W sin I. I is angle, okay, वो स्लोप एंगल। तो इसमें जो आपका है, आपने देखा कि जो W sin I आया, W sin थीटा, ये एक कंपोनेंट आपका वेट का है, वो किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, और इसको हम लोग ड्राइविंग कंपोनेंट भी बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये फोर्स होता है, ये कंपोनेंट जो वेट का होता है, इसी के कारण जो होता है ओपन चैनल फ्लो में वाटर फ्लो करता है। ओके, कोई भी फ्लूइड है तो वो फ्लो करता है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है कि यहाँ पे एक कोई चैनल दिया गया है, यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल में है, इस तरीके से चैनल दिया गया है, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो इसका बॉटम स्लोप है दैट इज़ द आई कंसीडर किया, थीटा स्मॉल है तो इसको इन्होंने कंसीडर किया। अब ये वेट कंपोनेंट है, डब्ल्यू बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इसको अगर हम कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे तो हमारे जो इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो डब्ल्यू साइन आई, और इस डायरेक्शन में आपका जो रहता है वो डब्ल्यू कॉस थीटा, कॉस आई लिख लो, तो इससे कोई मतलब नहीं है, डब्ल्यू साइन आई है, यही हमारा मेन कंपोनेंट है, जो कि मेन फोर्स है जो कि अप्लाई हो रहा है जब भी कोई भी फ्लो होता है हमारा किसी भी ओपन चैनल में। तो यहाँ से हमको ये ड्राइव करना है कि जब भी कोई वाटर फ्लो हो रहा होगा, कोई भी फ्लूइड, तो उसका कितना डिस्चार्ज होगा किसी भी सेक्शन पे। ओके, तो फाइंड आउट द डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल बाय द चेजिस फार्मूला। चेजी थे, चेजी ने एक फार्मूला दिया, उन्होंने इसको ड्राइव किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया चेजिस फार्मूला, और जो कि ओपन चैनल फ्लो में डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न अबाउट द टू फैक्टर्स। ओके, forces acting on the water between the section 11 and 22. In the diagram shows it is the section 11 and this is the section 22, and we consider only two forces for the drive a Cheji equation for the open channel flow, for what, to calculate the discharge at any section or a control section. Okay, तो उस डिस्चार्ज को फाइंड करने के लिए हमको दो फोर्सेस को याद रखना है, कहाँ से, 1 सेक्शन से 2 के सेक्शन के बीच में। तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि अगर हम 1 और सेक्शन 2 कट किए, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पर इस एल कंसीडर की है, ये डेटम लाइन होती है, ये इसका बॉटम है यहाँ पे। ओके, ये सॉलिड बाउंड्री है ताकि बॉटम है इस चैनल फ्लो की, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। ओके, तो जो दो फोर्सेस हैं वो दो फोर्सेस आपको कंसीडर करने हैं। एक तो आपको बता दिए कि ये डब्ल्यू साइन आई कहाँ से आया, आपको पता है कोई भी चीज़ है तो उसका हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगता है, तो वो डब्ल्यू जो वेट लग रहा है, अगर कोई स्लोप पर बॉडी रखी है और कोई भी ओपन चैनल फ्लो है, आपको पता है स्लोप प्रोवाइड कराते हैं वहाँ पे तभी फ्लो होता है, तो इसका मतलब वो आई एंगल के साथ में जो वर्टिकल से अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल लें फ्लो का, तो वो आई एंगल के साथ हमारा स्लोप यहाँ पे दिया गया है, तो उसका कंपोनेंट ब्रेक किए तो डब्ल्यू साइन थीटा और डब्ल्यू कॉस थीटा आया। डब्ल्यू साइन आई जो है वो हमारा क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। ओके, तो सबसे पहले हम एक फोर्स कंसीडर करेंगे, वो आपका रहेगा कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन आई, और वो किस डायरेक्शन में है, वो हमारा जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में डब्ल्यू साइन आई एक्ट कर रहा है। ओके, तो सबसे पहला एक फोर्स आप समझ गए हो कि ये डब्ल्यू साइन आई है। सेकेंड वन इज द, वी कंसीडर द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। आपको पता है जिस डायरेक्शन में अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स कहीं ना कहीं अप्लाई होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बना हुआ भी है, ये शो कर रहा है एरो कि यहाँ जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जब भी हमारा वाटर कोई फ्लो करता है तो इसके बारे में हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया था प्रीवियसली, तो वहाँ से आप देखेंगे उसका डेरिवेशन, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वो मैं लिख रहा हूँ फार्मूला। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ वाटर गिवन डब्ल्यू साइन आई, आई इज द एंगल जो हमने कंसीडर किया, स्लोप, बॉटम स्लोप कंसीडर किया, और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू द एफ रो एल वी स्क्वायर, वेयर देखो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या है, इट इज अ एफ पी एल वी स्क्वायर, वेयर डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वेट है तो हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किया गया, डेंसिटी हमने स्मॉल डब्ल्यू लिया है, और वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम जो होगा आपका एरिया इंटू लेंथ, इस क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम में अगर हम स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेट मिल जाएगा, जो डेंसिटी होती है जिसको रो से भी डिनोट करते हैं, तो स्पेसिफिक डेंसिटी है तो वेट मिल गया। ओके, तो ये हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया, रो ए एल आ गया आपका, और जो हमने फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की बात की है एफ, एफ इज़ द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है हमारा, पी
वेटेड पेरीमीटर रहेगा, L इज द लेंथ ऑफ द चैनल सेक्शन विच वी कंसीडर फॉर द कैलकुलेशन। ओके, जो ड्राइव करने के लिए हमने जो भी सेक्शन कट किया है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शन 1 1 to 2 2। ओके, L इज द डिस्टेंस। V, व्हाट इज V? V इज द मीन वेलोसिटी। ओके, जो भी फ्लो हो रहा होगा तो उसमें जो क्रॉस सेक्शन है हमारा, जिस भी क्रॉस सेक्शन पे हमको स्टडी करनी है वहाँ की मीन वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। ओके, ना कि मैक्सिमम ना मिनिमम, क्योंकि आपको पता है ओपन चैनल फ्लो में क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी सरफेस पे नहीं होती है। ओके, क्यों नहीं होती है? क्योंकि सरफेस पे हमारा कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक फोर्स एक्ट कर रहा होता है, ड्यू टू विच वो कुछ डिस्टेंस लेस पर, मतलब उसकी सरफेस पे ना होके मैक्सिमम कुछ नीचे हमको मैक्सिमम मिलेगी। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जाओगे उसमें मीन वेलोसिटी रहेगी, वही हम यूज करते हैं। ओके, वही कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमें पता चल गया, दो ही फोर्स याद रखने हैं कि चेजी की इक्वेशन जब भी ड्राइव करनी है आपको तो सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशन याद रखनी है आपको। ओके, कौन सा? एक आपको याद रखना है कि वेट ऑफ द वाटर कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, एंड सेकेंड वन इज द frictional resistance. Okay, the weight of the water in the direction of the flow is that is W sin I and frictional resistance is FPL V square. अब उन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कह दें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके, इन दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेट कर दिया जाए, इक्वेट बोथ फोर्सेस, दोनों फोर्सेस को इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, FPL V स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल w A L साइन I। अब ये ए एल कहाँ, यहाँ पे देखिए ये डब्ल्यू दिया गया था, डब्ल्यू हमें पता है क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डब्ल्यू हमारा स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट किया तो डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम ए एल है। अब यहाँ से देखिए लेंथ और लेंथ कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो ये लेंथ और लेंथ जब कट आउट हो गया तो हमारा क्या बचेगा, तो इन ही पैरामीटर्स को हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हम बात करें वी की, तो ये वी जो होगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू, इधर आपका बचा है स्मॉल डब्ल्यू, इसके नीचे हम फ्रैक्शनल कोफिशिएंट ले आएँ, एंड इधर ए बचा है, और अगर ये पी आ जाए, एंड दिस इज द साइन आई। अब आप लोगों ने देखो, हम जो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हैं, अगर किसी के समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर आपके तुरंत समझ में आ गई होगी बात कि देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एफ ए अपॉन पी एंड साइन आई। अब अगर वेलोसिटी आप कैलकुलेट करें यहाँ पर तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी, एफ इंटू ए अपॉन पी इंटू अंडर रूट साइन आई। ओके, साइन आई मिल गया। अब आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर जो कांस्टेंट है, डेंसिटी देखो कांस्टेंट होगी, किसी भी फ्लूइड का जो भी फ्लूइड फ्लो होगा उसका पता होगा, और जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट एफ है, इसको कैलकुलेट करने के कई फार्मूले और सब ड्राइव किए हैं, और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही आपको मिलेगी, तो इसको भी हम टेबल से नोट कर सकते हैं, मतलब कि ये दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो इनको फाइंड करने का चेजी ने खुद सारे एक्सपेरिमेंट करके और इसको एक कांस्टेंट वैल्यू दी है, और वो उन्होंने लिखा था इसको सी। ओके, तो ये जो कांस्टेंट वाला है इन्होंने अपना एक टर्म इंक्लूड किया है, डब्ल्यू अपान एफ इक्वल सी। अब आप लोगों को पता होगा कि ए अपान पी, ये अपान पी क्या होता है। ओके, तो ये आप सभी लोगों को पता है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है ए अपान पी, वेयर इज ए इज द एरिया एंड पी क्या है, वेटेड पेरीमीटर ऑफ एनी ओपन चैनल फ्लो में। ओके, जो भी क्रॉस सेक्शन, जो भी चैनल कंसीडर करोगे, उसका जो वेटेड पेरीमीटर है वो हमारा पी हो गया, ये हो गया उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर उन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया भी है। ओके, बताए थे आपको कि ए अपान पी क्या होता है जब हम ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो एम, और इसको कुछ बुक्स में ए भी डिनोट किया जाता है, इसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, वो हाइड्रोलिक रेडियस होती है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एम से डिनोट किया जाए और या आर से डिनोट किया जाए, वो ए अपान पी है। ओके, बंसल की बुक देखेंगे उसमें आपको एम से डिनोट होगा, और आप बुक देखेंगे सुब्रमण्यम की देखेंगे तो उसमें आर से ही हमारे हाइड्रोलिक मीन रेडियस को डिनोट करते हैं। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, बस यही ध्यान रखना है कि ए अपान पी क्या है, ए अपान पी हमारा हाइड्रोलिक मीन रेडियस एम से डिनोट करते हैं या आर से। अब हम क्या करें, अगर वी पुट द वैल्यू ऑफ इन वेलोसिटी इन दिस इक्वेशन, v इक्वल टू सी अंडर रूट आर, इतना मिल गया। अब बचा है साइन आई। ओके, तो साइन आई को अगर अप्रॉक्स में हम मान लें आई, मीन्स वो स्लोप है आपका, कहाँ का, बॉटम स्लोप को, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर लिखिए या आई, और इसको हम साइन आई को यहीं पे लिख देते हैं। ओके, देखो साइन आई जो है ये स्लोप है, इसको आप अप्रॉक्स में आई भी लिख सकते हो, या इसको आप एस नॉट लिख दो। ओके,
तो एस लिख दोगे तब भी वही हो जाएगा कि स्लोप है बॉटम का, तो ये पता होना चाहिए। देन वी ड्राइव द इक्वेशन v इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस। ओके, ये एक डेरिवेशन है, तो यहीं पे हम लोग शुरू किए हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये हुआ है, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए कि हम जब भी ड्राइव करेंगे कोई भी चेजी इक्वेशन, जब डेरिवेशन करना है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आपको, आपके सिलेबस में वो भी हैं। तो पहले डेरिवेशन जो करना है, तो डेरिवेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड में है, रिक्वायर यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स याद रखने हैं आपको। कंपोनेंट ऑफ वेट in the direction of the flow, that is the when we break down the component of weight of the water, that is the W sin I, where I is the slope, bottom slope consider किए हैं। ओके ठीक, तो इसको हमने देखा, ये डायग्राम देख लीजिए, ये बना लीजिए। वेयर W क्या है हमारा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये इसको रो ए एल भी लिख सकते हो, W A L है स्मॉल में, और दोनों फोर्सेस को अगर इक्वेट कर दोगे तो आपका आ जाएगा रो पी एल वी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू ए एल साइन आई। ओके, देखिए यही चीज़ आपको बता रहे थे कि चेजी फार्मूला जो होता है v इक्वल टू सी एम आई, तो या v इक्वल टू अभी ड्राइव किए थे सी एम आई या आर एस, दोनों एक चीज़, मतलब हो गया r क्या है, m दिया है हाइड्रोलिक रेडियस। ओके, हाइड्रोलिक रेडियस, ओके, इट इज़ r, या आई एम से भी डिनोट करते हैं इसको। ओके, एंड जो हमारा आई है वो स्लोप है, हम बताए थे, ये अप्रॉक्स में साइन आई इक्वल होता है या एस से डिनोट करो, तो ये वाली चेजी इक्वेशन है। अब देखिए वहाँ से जो हमने 2 फोर्सेस जो हैं, देयर आर द 2 फोर्सेस, एक आपका दिया है v इक्वल टू डब्ल्यू अपान एफ अंडर रूट ए अपान पी साइन आई। ओके, इस इक्वेशन में तो अब यहीं पर देखिए ये लिखा है ए अपान पी, इट इज डिनोटेड बाई एम एंड इट इज़ hydraulic radius, okay, and the factor W upon F under root it is equal to the C, and C is the Chayes constant. Okay, got it? So these parameters derived by the Chayes, और इस इक्वेशन को उन्होंने वेलोसिटी फाइंड करने के लिए चेजी की इक्वेशन ड्राइव की थी। कोई भी फ्लूइड है किसी भी सेक्शन पर, जब भी ओपन चैनल फ्लो में ये फ्लो हो रहा होगा तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसका यूज करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि v इक्वल टू क्यू डब्ल्यू अपान एफ की जगह पे आप रख दीजिए, इसकी जगह पे c, और a अपान पी की जगह क्या आ जाएगा अंडर रूट में, ये आपका आ जाएगा m, और साइन आई की जगह पर i, ये स्लोप है, तो ये इक्वेशन बन गई v इक्वल टू c अंडर रूट एम आई, और ये चीज़ी इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन आप समझ गए होंगे। ओके, सब्स्टिट्यूट वही इक्वेशन नंबर 2 और 3 में अभी रखा है पीछे इक्वेशन में हमने, तो हमको जो फार्मूला मिल गया है, देखिए यहाँ पर आ गया है v इक्वल टू सी अंडर रूट एम, वेर एम क्या है हमारा हाइड्रोलिक रेडियस, ए अपान पी, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड पी इज द वेटेड पेरीमीटर। ओके, फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ आई मीन्स थीटा, जो एंगल दिया गया है साइन आई अप्रॉक्स इक्वल टू 10 आई एंड इट इज़ द इक्वल टू आई, मतलब जो बॉटम स्लोप कंसीडर किए हो, ओके, उसी को यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि वो हमारा साइन आई है अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 10 आई, बहुत स्मॉल के लिए, और इट इज़ इक्वल टू आई, तो उसी को पुट कर दिए। तो ये मेन इक्वेशन आपकी आगे v इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई। अब आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो चेजी की इक्वेशन आपको डायरेक्ट यूज़ करनी है, दैट इज़ द b इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई। अब आपको देखो ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो पैरामीटर्स हैं वो हैं कौन से, चाहे वो एम आई लिखा हो, आपको बता दिए हैं, r से भी डिनोट करते हैं, और इसको m को हाइड्रोलिक रेडियस। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो हमारा होता क्या, वो रेशियो है, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, दैट्स ऑल। ओके, अब किसी भी टाइप का आपका चैनल सेक्शन हो, चाहे आइदर आपका रेक्टेंगुलर हो, ट्रेंगुलर हो, सर्कुलर हो, ओके, ट्रपोजाइडल्स हो, तो उसकी एरिया आपको पता होगी, पेरीमीटर्स के फार्मूले सब ड्राइव किए हैं, बताए थे आपको, तो वो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हैं। आप वहाँ से अगर नहीं देखें तो फिर से वो क्लास देखिए और वो सारे फार्मूले वहाँ से याद कर लो। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो एरिया और पेरीमीटर किसी भी क्रॉस सेक्शन का है, जब भी आप डिजाइन करेंगे उनका रेशियो निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा हाइड्रोलिक रेडियस। यहाँ पे पुट कर देंगे, केवल हाइड्रोलिक रेडियस में आपको कुछ ना कुछ जब भी डिज़ाइन करना होगा फॉर अ सिविल इंजीनियर, तो आपको देखिए डायमेंशन कुछ ना कुछ दी जाएंगी। ओके, कुछ ना कुछ डायमेंशन कोई देगा, तभी तो आप उस पर काम करेंगे कि हाँ हमको किस तरीके से डिज़ाइन करके देना है, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, तो वहाँ से जो डायमेंशंस दी होंगी, एरिया कैलकुलेट कीजिए, पेरीमीटर्स,
रेशियो निकालिए उसका, एरिया अपन पेरीमीटर का, हाइड्रोलिक रेडियस पुट कीजिए, स्लोप कितना प्रोवाइड कराना है हमारे चैनल में, उस चैनल की आई की वैल्यू पुट कीजिए। सी चेजी कांस्टेंट है, हमेशा दिया रहेगा, वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, तो उसको हमने उन्होंने दिए हैं वैल्यूज़ अलग अलग, तो वो आपको गिवन रहेगी। तो आप वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ये आपकी चेजी इक्वेशंस थी। अब चेजी की जो इक्वेशन थी उन्हीं के साथ मैनिंग्स ने भी अपना फार्मूला दिया था। ओके, उनकी भी स्टडी होती रही, काफ़ी बाद में आया। तो मैनिंग्स जो इक्वेशन दी थी, मैनिंग्स का जो यहाँ पे n लिखा है, ओके, ये उनका मैनिंग्स कोफिशिएंट था। तो पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि चेजी ने इक्वेशन जो आपको दी है वो v = CMI दी गई। ओके, और चेजी ने भी आप उनको मैनिंग्स ने इक्वेशन दी थी v = 1/n स्मॉल n r⁻²/3 और s0 की पावर 1/2। ओके, 1 मिनट, देखिए मैनिंग्स इक्वेशन यहीं पे याद कर लो। मैनिंग्स इक्वेशन जो थी वो भी आपकी वेलोसिटी के लिए दी गई थी 1/n v = एंड m⁻²/3 और s की पावर i की पावर 1/2। ओके, ये इक्वेशन आप लिख लो। ये मैनिंग्स की इक्वेशन थी, मैनिंग्स थे, तो उन्होंने भी इस पर काफ़ी स्टडी की थी ओपन चैनल फ्लो में। तो उन्होंने अपनी एक इक्वेशन ड्राइव की थी जो कि v इज़ द वेलोसिटी = 1/n m⁻²/3 एंड i की पावर 1/2। i क्या है, स्लोप है, m क्या हमारा रेशियो है, एरिया अपन वेटेड पेरीमीटर का, n क्या है, ये मैनिंग्स का कोफिशिएंट था। जैसे चेजी ने अपना एक कोफिशिएंट दिया है c, ओके, तो इसी तरीके से मैनिंग्स का कोफिशिएंट था स्मॉल n। तो आपको स्मॉल n कहीं भी मिलेगा, अगर ओपन चैनल फ्लो में जब आप यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ रहे होंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये मैनिंग्स का कांस्टेंट दिया गया है। अब आपका चेजी या मैनिंग्स का जो भी दोनों का कांस्टेंट दिए हैं, मान लीजिए एक का दिया गया और आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। कुछ ऐसे पैरामीटर्स दिए हैं कि आप इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज करो। ओके, तो आप इन दोनों का आपस में रिलेशन भी था, दोनों के कोफिशिएंट का जो रिलेशन था वही यहाँ पे देखिए दिया गया है मैनिंग्स n के बारे में। तो चेजी फार्मूला कैन आल्सो बी यूज फॉर द मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट। ओके, तो ये स्मॉल n जो है वो रफनेस कोफिशिएंट जो है इनका, ये मैनिंग्स का रफनेस कोफिशिएंट है, तो स्मॉल n का जानिएगा। अब ये रिलेशन आया है, ओके, देखिए यहाँ पे r लिखा है, वही m जो है वही r है। तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोलिक रेडियस दी गई है और c का ये कैसे रिलेशन आया, दोनों की इक्वेशंस देखिए। चेजी इक्वेशन दी है v = c√, अगर मैं आर एस लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, ये आपको दी गई है चेजी की इक्वेशन। और मैनिंग्स की इक्वेशन मैंने क्या बताया, वेलोसिटी के लिए ही 1/n r⁻²/3 और s की पावर 1/2। ओके, अब दोनों साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में दोनों पैरामीटर्स सेम है। ओके, तो वेलोसिटी दोनों सेम है, इसका मतलब अगर हम इनको इक्वल कर दें देन हमारा आ जाएगा c√r(s) = r⁻²/3 और s की पावर 1/2 1/n। यहाँ से अगर r की पावर 1/2 है, इसको 1/2 माइनस कीजिए, s की पावर √1/2 ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ जाएगा c = 1/n r⁻1/6। ओके, वेयर r इज द हाइड्रोलिक रेडियस, n इज द मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, c = 1/n r⁻1/6 वेयर c इज द चेजी कांस्टेंट एंड n इज द मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट। ओके, तो आपको ये समझना है कि चेजी की इक्वेशन कैसे ड्राइव करनी है, उनका क्या फार्मूला आया था, मैनिंग्स का फार्मूला डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको। और उन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमको वेलोसिटी जो फाइंड करने के फार्मूले दोनों के हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो c और n मतलब कि चेजी कांस्टेंट एंड मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट का रिलेशन आपको मिल जाएगा, वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे है। ओके, उसके बाद में चेजी और मैनिंग्स की जो इक्वेशंस थी और फिर आपको वेलोसिटी जब पता चल जाएगा तो क्वांटिटी इक्वेशन से q = AV और एरिया आपको पता होगी तो आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट, कोई भी कहीं से वेलोसिटी आप फाइंड कर लो चेजी से या मैनिंग से। देन क्वांटिटी इक्वेशन का आपको फार्मूला डिस्चार्ज का पता है, q = AV। जो डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला फाइंड किया है, तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू रख दो, एरिया फाइंड आउट पहले कर चुके हैं तो आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लोगे। ओके, इसके बाद में और भी फार्मूले दिए गए, उनको मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताना चाहूँगा, जैसे बेजिंस फार्मूला था। ओके, यहाँ पर देखिए चेजी फार्मूला कैन आल्सो बी यूज विद द वेजिंस फार्मूला। तो ये c की वैल्यू जो थी उन्होंने वेजिंस ने भी इसी के लिए आपको इक्वेशंस ड्राइव की थी, उन्होंने भी फार्मूला दिया तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, जो कि
वेजिंस ने अपना एक कांस्टेंट दिया था। ये सारी चीज़ें स्टडी की गई ओपन चैनल में अलग अलग कंडीशंस में, तो उनके सबके कांस्टेंट वो आए थे, तो वो आपस में रिलेशन उन्होंने ड्राइव किए। तो देखिए चेजी का मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट के साथ भी हुआ, चेजी का वेजिंस फार्मूला के साथ रिलेशन क्या है ये याद रखिएगा, ये भी आपका कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओके, इसको भी यूज कर लोगे तो वेयर C इक्वल टू 157.6 डिवाइड बाई 1.81 प्लस K अपान अंडर रूट M। आपको पता होगा M क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस आपकी ये मालूम है, K क्या है, K जो कांस्टेंट है ये आपका वेजिंस कांस्टेंट है। वेजिंस कांस्टेंट की कई डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं, आप उनको सबको टेबल से याद कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए हमको मालूम है फार्मूला आपको याद होगा Q इक्वल टू AV, इसी फार्मूले का यूज करेंगे आप डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए, और एरिया आप फाइंड कर लेंगे। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए चेजी इक्वेशन ड्राइव की है। अब आपके पास चाहे कांस्टेंट वेजिंस का दिया हो, मैनिंग्स का दिया हो, या अदर फार्मूला जो हो आगे हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, तो वो सब आप यूज कर सकते हो। तो चेजी का रिलेशन जो कोफिशिएंट का है उनका याद रखना है। ओके, तो वो याद रखिए आप सी का, चाहे आपका C इक्वल टू 1 अपान एन आर पावर 1/6 हो, या C इक्वल टू 157.6 अपान 1.81 प्लस K अपान अंडर रूट M, वेयर K इज द वेजिंग कांस्टेंट। तो K जो वेजिंग कांस्टेंट है वो देखिए डिफरेंट कंडीशंस के लिए उसकी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको K इनकी वैल्यू दी गई है कांस्टेंट की। अगर आपका स्मूथ सीमेंट प्लास्टर है या प्लेन्ड वुड है तो उसका 0.11 लेना है आपको। कंक्रीट ब्रिक्स है अगर आपकी तो उसका 0.21 लेना है। ओके, एंड स्मूथ रवल्स मशीनरी है तो उसके लिए आपको 0.83 वैल्यूज़ लेनी है। ओके, तो इस तरीके से आपको देख रहे हो इस टेबल से सभी वैल्यू ये याद कर सकते हो, याद नहीं करनी है, ये आपको गिवन में रहेगा कांस्टेंट की वैल्यू। तो इस टेबल से आपको अलग अलग अर्थन कैनल्स है, डायरेक्ट अर्थ चैनल, एवरेज कंडीशन है 2.36 तक वैल्यू जाती है। तो इसी अप्रॉक्स में अगर नहीं भी किसी न्यूमेरिकल में दिए तो आप कंसीडर कर सकते हो। ओके, इसी के अप्रॉक्स में। तो ये वेजिंस का था। तो आपको ये ध्यान रखना है इस कि हमने जो डिस्कस किया अभी तक इस लेक्चर में, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। चीजी का डेरिवेशंस, उनका फार्मूला, मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट स्मॉल n जो दिया गया उसके साथ में रिलेशन, वेजिंस जो K स्मॉल K से डिनोट करते हैं उनके कांस्टेंट के साथ चेजी का कांस्टेंट का रिलेशन, और वो सारी वैल्यूज, इतना सिर्फ आपको ध्यान रखना है। और फिर हम अभी इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।